Hello students, myself Gahin Singh, a lecturer IT, Siemens Government Girls Polytechnic, Kerala Merit. My subject is a data structure agency. In this subject, first chapter is fundamental notices. These are some contents: introduction to data structure, problem solving concepts related to top-down and bottom-up approach, structured programming concept of data types, variable and constraints, concept of pointer variable and constraints, and categories of data structure. The first one is the introduction to data structure. Data structure is an important as it focuses on the following things. First, we organize the data. A second one is defining the proper access method for the stored data. A third one is the degree of associativity between data. What is the data structure? Data structure is the mechanism of organizing and storing the data properly and establishing the relation between data stored. मीन्स डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसी मैकेनिज्म है, एक ऐसी टेक्निक है जो किसी भी डेटा को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करती है, स्टोर करती है और जो स्टोर डेटा है उसके बीच एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करती है. Whenever a required these data can be searched, retrieved, sorted or perform various other operations without much effort. Next one is how to choose proper data structure. This is the most concept. In that case, a data structure acts as a base along with the algorithm for any program. Means डेटा स्ट्रक्चर क्या जो मतलब है वो है कि कोई भी प्रोग्राम हो उस प्रोग्राम को एल्गोरिथमिक रूप से हम लिख सकें. एल्गोरिथम्स मीन्स एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है किसी भी प्रोग्राम्स को ड्रॉन आउट करने का. नेक्स्ट, सो डेटा स्ट्रक्चर सिलेक्शन शुड बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया. अगर हमें कोई डेटा स्ट्रक्चर सेलेक्ट करना है तो उसका कुछ क्राइटेरिया होता है. द फर्स्ट वन इज द डेटा स्ट्रक्चर शुड बी सिंपल एंड इजी टू यूज. Simple and easy to use means user friendly. Next one is a data structure selected should be able to reflect the relationship that exists between the data. Next is a data structure should allow to access, store, sort, search data in convenient manner. मतलब किसी भी डेटा जो हमने स्टोर कर रखा है उसको हम सर्च कर सकें, एक्सेस कर सकें, उसको स्टोर कर सकें या उसकी सॉर्टिंग्स कर सकें अकॉर्डिंग टू अ कन्वीनियंट मैनर. Advantages of data structure. The first one is the data structure helps in efficient storage of data in storage devices. स्टोरेज डिवाइसेस में डेटा को स्टोर करने के लिए इफिशिएंटली ये डेटा स्ट्रक्चर हेल्प करता है क्योंकि ये एक वेल और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में डेटा को स्टोर करता है. डेटा स्ट्रक्चर यूसेज प्रोवाइड्स कन्वीनियंस while retrieving the data from the storage device. अगर एक डिवाइस में कोई डेटा आपने स्टोर कर रखा है उसको आपको रिट्राइव करना है then we use the data structure uses. Data structure provides effective और efficient processing of small as well as large amount of data. या small amount of data है या large amount of data है उसको effective और efficient processing provides करता है data structure. Usage of proper data structure can help programmer save lots of time for processing time. While operations जैसे storage, retrieval और processing of data, manipulation of large amount of data can be carried out easily with the use of good data structure approach. Next one is sixth point. Most of the well-organized data structure like array, stack, queue, graph, tree, linked list has well-built and a pre-planned approach for operations like storage, addition, retrieval, manipulation, and deletion, etc. By using them, a programmer can completely rely on these data structures. A data structure usage can simply encouraging reusability in long run as well. मतलब बहुत लंबे समय तक हम किसी भी डेटा की reusability को
यूज कर सकते। डिसएडवांटेजेस, फर्स्ट वन इज द एप्लीकेशन यूजिंग डेटा स्ट्रक्चर। ये थोड़ा इसमें थोड़ी मिस्टेक है कि जो फर्स्ट वन जो है टॉपिक वो पॉइंट नहीं है, वो ये डिस्क्राइब कर रहा है कि जो डिसएडवांटेज है डेटा स्ट्रक्चर के वो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो नीचे दे रखे हैं। तो सेकंड वाला जो पॉइंट है वहां से फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट होगा। एप्लीकेशन यूजिंग डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर हाई क्वालिफाइड प्रोफेशनल रिसोर्सेज टू मैनेज द operations related to data structure. Second was a bigger the application or data structure involved in creating or maintaining application, more is the requirement of main power. They can increase maintain data structure cost. मतलब डेटा स्ट्रक्चर कॉस्ट को मेंटेन करने के लिए हमें हाईली मेन पावर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जिसकी वजह से एक तो कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है इससे, क्योंकि हमें ज्यादा एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे तो उनको सैलरी भी देनी पड़ेगी, तो इससे कॉस्ट भी इन्वॉल्व हो जाती है। Designing your own data structure may involve complex algorithms and may require a lot of time and testing to conclude they are foolproof and ready to use the organization purpose. First one, next one is the problem solving concept. A problem solving concept, first one is top down design model. टॉप डाउन डिजाइन मॉडल का मतलब है जब किसी भी अप्रोच में हम ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो आउट करते हैं, दैट्स कॉल्ड द टॉप डाउन डिजाइन मॉडल। In the top-down design model, overview of the system is formulated without going into detail for any part of it. Each part of it then refined into more details, defining it in yet more details until the entire specification is detailed enough to validate the model. If we glance at a whole as a whole, it's going to appear not possible as a result of its so complicated. For example, writing a university system program, writing a word processor, complicated issues may be resolved. Victimizations, high down styles, conjointly referred to as a step-by refinement fear. We break the problem into parts. टॉप डाउन मॉडल में क्या होता है कि जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको सब पार्ट्स में ब्रेकआउट करते हैं, सब पार्ट्स में सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशंस को देन अगेन मर्ज करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, और फाइनली वी हैव टू कंक्लूड एक पर्टिकुलर प्लेस पे उसे कंक्लूड कर लेते हैं उसके आंसर को। तो दिस इज द टॉप डाउन डिजाइन मॉडल। एडवांटेज, ब्रेकिंग प्रॉब्लम को इनटू पार्ट्स हेल्प अस टू आइडेंटिफाई व्हाट नीड्स टू बी डन। गुड, एट ईच स्टेप ऑफ रिफाइनमेंट न्यू पार्ट्स विल बिकम लेस कॉम्प्लेक्स। Parts of solution may turn out to be reusable. Of breaking problem into parts allow more than one person to solve. इसमें मेन पावर दिया जाता है, बहुत देख सकते व्यक्ति। बॉटम अप डिजाइन मॉडल, बॉटम अप डिजाइन मॉडल में क्या होता है कि इसमें जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो बॉटम से स्टार्ट होकर अप एंड डाउन पे खत्म हो जाती है। कि जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको अगेन हमने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद मॉड्यूल उसको मॉड्यूल्स में ब्रेकआउट किया, मॉड्यूल्स को हमने इंडिविजुअल पर्संस को प्रोवाइड करा दिया, सॉल्व कराया, इससे टाइम कंजप्शन कम हो जाता है। दूसरा, सॉल्व कराने के बाद उसकी जो भी सॉल्यूशंस आते हैं उनको अगेन कंबाइन करके फिर जो टॉप डाउन है उसके रिवर्स प्रोसेस बॉटम अप डिजाइन में। Individual parts of the system are specified in detail. The parts are linked to form a large component, which are in turn linked. Advantage क्या है इसके? Make decision about reusable low-level utilities, then decide how they will be put together to create high-level construct. The contrast between top-down and bottom-up. ये स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है डेटा टाइप्स। डेटा स्ट्रक्चर में टू टाइप के डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो बिल्ट इन डेटा टाइप्स जो पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं हमारे सिस्टम के अंदर, जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, और कुछ डेटा टाइप्स जो होते हैं वो यूजर डिफाइंड होते हैं, जैसे कि एरे हम बनाते हैं, किसी भी नेम का बना सकते हैं, लिस्ट बनाते हैं, फाइल्स बनाते हैं। लिस्ट भी दो टाइप की होती है, लीनियर लिस्ट एंड नॉन लीनियर लिस्ट। लीनियर लिस्ट में स्टैक और क्यूज आ जाते हैं और नॉन लीनियर लिस्ट में ट्रीज और ग्राफ। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कंसेप्ट डेटा टाइप्स का, इसमें क्या, डेटा स्ट्रक्चर कैन आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मींस जो भी डेटा आइटम्स होते हैं वो एक लीनियर सीक्वेंस में होंगे, जैसे कि एरे है, लीनियर सीक्वेंस मतलब एक ही टाइप के
नॉन लीनियर का मतलब होता है कि जो भी आइटम्स हैं वो सीक्वेंस में नहीं होंगे, जैसे ट्री है, ग्राफ है। होमोजेनियस में क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सेम टाइप के होंगे, जैसे कि एरे, वो इंटीजर टाइप हो सकता है, सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो या तो इंटीजर टाइप होंगे या फ्लोट टाइप होंगे। नॉन होमोजेनियस मतलब जो भी एलिमेंट्स हैं वो सेम टाइप के हो सकते हैं और सेम टाइप के नहीं भी हो सकते, जैसे कि स्ट्रक्चर्स हैं हमारे। स्टैटिक स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो होते हैं जिनका साइज और स्ट्रक्चर एसोसिएट मेमोरी लोकेशन फिक्स्ड कर देते हैं कंपाइल टाइम पे। कंपाइल टाइम पे ही जिनकी लोकेशन हम फिक्स्ड कर देते हैं, जिनका साइज हम फिक्स्ड कर देते हैं, जैसे एरे। जब भी हम एरे डिक्लेयर करते हैं तो उसका साइज हम पहले फिक्स्ड कर देते हैं। डायनेमिक डायनेमिक का मतलब है कि इसके साइज को हम कंपाइल टाइम पे एक्सपेंड कर सकें, श्रिंक कर सकें, जिस तरह से हमें रिक्वायरमेंट है एग्जीक्यूशन पे उसी हिसाब से उसको एक्सपेंड और श्रिंक कर सकें। और एसोसिएटेड मेमोरी लोकेशन चेंज भी कर सकते हैं, जैसे लिंक लिस्ट क्रिएटेड यूजिंग पॉइंट। वेरिएबल और कांस्टेंट में मैंने इसलिए कुछ नहीं लिखा है कि वेरिएबल्स का मतलब होता है कि जिनके थ्रू हम किसी को वैल्यू असाइन कर सकें, और कांस्टेंट का मतलब होता है कि जो हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं पर्टिकुलर वेरिएबल को जो फिक्स्ड होती है, जैसे कि a बराबर 5, a इज इक्वल टू 5, तो a इज ए वेरिएबल एंड 5 इज ए कांस्टेंट, and we have to categorize according to data types, जैसे integer a is equal to 5, float b is equal to 6. That's for the variables and constant. कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर वेरिएबल एंड कांस्टेंट। पॉइंटर मींस क्या होता है कि स्पेशल वेरिएबल होता है जो एक तो किसी भी जो भी वेरिएबल होता है उसके एड्रेस को स्टोर करता है, उसकी वैल्यू को भी स्टोर करता है। जैसे कि यहाँ पे सिंटेक्स ले लें, हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, इंटीजर स्टार पी। स्टार जो होता है स्टार पी, वी हैव टू डिक्लेयर पॉइंटर पी ऑफ इंटीजर टाइप, मतलब जो पी एक पॉइंटर लिया है हमने उसको इंटीजर टाइप हमने डिक्लेयर कर दिया है। ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं जैसे कि दो पॉइंटर्स हमने डिक्लेयर कर दिए एक साथ। एड्रेस पे असाइन कर सकते हैं, जैसे हमने दो पॉइंटर, एक पॉइंटर ले लिया पीसी और एक सी, एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर टाइप का, सी में एक वैल्यू असाइन कर दी, तो सी का जो एड्रेस है हमारे पास उस एड्रेस में उसको हमने पॉइंटर को असाइन कर दिया। तो 5 एक असाइंड किया हमने सी वेरिएबल को और एड्रेस ऑफ सी असाइंड किया हमने पॉइंटर वेरिएबल को पीसी। पॉइंटर वैसे नेक्स्ट एक टॉपिक भी होगा तो इसको हम ब्रॉडली पढ़ेंगे आगे चल के। कैटेगरीज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर की टू कैटेगरीज होती है, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स में डेटा टाइप्स जाते हैं जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, पॉइंटर्स। नॉन प्रिमिटिव में वही एरे, लिस्ट, फाइल्स। लिस्ट में लीनियर और नॉन लीनियर, वही लीनियर में स्टैगर क्यू और नॉन लीनियर में ट्री एंड ग्राफ। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं? आर द बेसिक स्ट्रक्चर्स, दे आर डायरेक्टली ऑपरेटेड अपॉन बाय द मशीन इंस्ट्रक्शंस। जैसे जो भी मशीन इंस्ट्रक्ट करेगी, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, पॉइंटर, उस तरह से। और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर ये ड्राइव्ड होते हैं प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर से। दे कैन अलाउ स्ट्रक्चरिंग ऑफ होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस डेटा आइटम्स, जैसे एरे, लिस्ट, फाइल्स। लिस्ट में भी फर्दर क्लासिफाइड लाइक दिस। एल्गोरिथम बेसिक्स क्या होती है? एल्गोरिथम्स क्या होता है? एल्गोरिथम इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, मतलब किसी भी प्रोग्रामेटिकल को या किसी भी लॉजिक प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस के थ्रू उसको डिफाइन कर देना, दैट्स कॉल्ड एल्गोरिथम। कैन बी डिफाइंड एज ए फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप बाय इंस्ट्रक्शंस दैट शुड बी फॉलोड परफॉर्म a specific task like solving or a logical or mathematical problem. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है गुड एल्गोरिथम्स की? जैसे कि क्या इनपुट है, जनरलिटी क्या है, वर्क कौन सा सेट ऑफ इनपुट्स किस वर्क कर रहा है, डेफिनेटनेस, द स्टेप मस्ट बी प्रिसाइज डिफाइंड, यूनिकनेस होनी चाहिए, फिट फाइनाइटनेस होनी चाहिए, आउटपुट्स लाइक यू हैव टू रीड। एल्गोरिथम्स कैसे दिखते हैं? एल्गोरिथम लिखने के स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमें इनपुट्स को लिखना होता है, फिर पर्टिकुलर जो भी लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं उसका जो भी एग्जांपल ले रहे हैं उसका सिंटैक्स कैसे करेंगे, फिर वेरिएबल को हमें इंक्लूड कर सकते हैं इसमें, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को कैलकुलेट और उनके रिजल्ट्स को कैलकुलेट करने के लिए डिफाइन कर सकते हैं, और हम स्टेप बाय यूनिक स्टेप नंबर भी उसको दे सकते, यूनिक स्टेप नंबर भी हमें प्रोवाइड करना पड़ता है, और फाइनली सम एक्शंस और प्रोड्यूस एन आउटपुट।
एल्गोरिथम्स जो होता है एक लॉजिकली रिप्रेजेंटेड होता है फ्लो चार्ट का। अब फ्लो चार्ट एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम, जैसे एल्गोरिथम्स कह लो आप, या ज्योमेट्रिकल या मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स कह सकते हो। इसके कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे अगर ओवल है तो उसके थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं कि वो स्टार्ट या स्टॉप का सिंबल है। use the beginning and end of the flow chart to indicate start and end of the program or algorithms respectively. रेक्टेंगल जो होता है वो प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है कि हम जो भी करेंगे इसमें इनपुट्स और प्रोसेस करेंगे, यूज टू इंडिकेट प्रोसेस और एक्शंस, फॉर एग्जांपल ऐड टू नंबर्स। पैरेललोग्राम जो होता है इनपुट और आउटपुट के लिए यूज होता है, यहाँ पे हम इनपुट और आउटपुट्स देते हैं, एग्जांपल रीड ए नंबर को, प्रिंट ए नेम, समथिंग लाइक दैट। डायमंड विच यूज्ड फॉर द डिसीजन के लिए, सिचुएशन विच डिमांड्स वन टू चूज आइदर यस और नो। एरो लाइन से फ्लो लाइंस होती हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं कि जो ग्रामेटिकली जो फ्लो है किस डायरेक्शन में है। फीचर्स क्या है फ्लो चार्ट के? अब फ्लो चार्ट शुड हैव ओनली वन स्टार्ट एंड वन स्टॉप सिंबल्स होगा इसका। जनरल डायरेक्शंस होगी फ्लो की इन फ्लो चार्ट में, फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एरो हेड्स आर यूज्ड टू इंडिकेट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। एयरलाइंस शुड नॉट क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस। दैट्स ऑल। थैंक यू।